resources. These resources are provided by the OS. When resources are allocated for a program, it becomes process. If an operating system can allocate resources for a single program at a time, it is called single tasking. If an operating system can allocate resources for multiple programs at a time, it is called multitasking. Multitasking is of two types: process-based, thread-based. If an OS can allocate resources for multiple applications, it is called multiprocessing. If it can context switch between independent modules of an application, it is called multi-threading. मैंने इतनी बात बताने के बाद आपको बताया था, the first thing that we need to do in case of multi-threading is the identification of independent modules of an application. To facilitate identification of independent module, an interface named Runnable is provided by Sun Microsystem. This interface contains one method named run. If I want to define n different modules in my application, then I need to define n implementations of run method. Each implementation of run method can be executed as a thread. पहला वहाँ पर हो जाता है. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा थ्रेड होंगे, we need to manage them. In order to facilitate management of threads, Sun Microsystem provided a class by the name thread. For each thread, an object of thread class is created by the JRE or by the application developer. This object is used to keep the track of thread state. किसी एक thread के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ उस ऑब्जेक्ट में रखा जाता है. अब आगे बात करते हैं. मैंने कुछ मेथड्स आपको लिखाए थे, लिखिएगा. फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच एप्लीकेशन, नेक्स्ट लाइन से, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच एप्लीकेशन JRE starts a thread. JRE starts a thread by the name main. Main. This thread is responsible for executing the application. यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है. Most of the people are always confused between main method and main thread. Main method and main thread are two different things. लोगों को लगता है main method ही main thread होता है. Main thread अलग चीज़ है, main method अलग चीज़ है. In order to start the execution of an application, certain resources are required. In order to invoke a method, in order to load a class, certain resources are required. आपको बताया गया था, in order to execute an application, memory is divided into three parts: stack, heap and class area. अगर मुझे कोई क्लास लोड करनी है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? क्लास एरिया की जरूरत होगी. If I want to invoke some method, I need stack. If I want to create some objects, I need heap. Heap केवल एक बनता है एक एप्लीकेशन में. स्टैक और क्लास एरिया एक नहीं बनते हैं. स्टैक और क्लास एरिया बहुत सारे बनते हैं. फॉर ईच थ्रेड स्टैक इज क्रिएटेड, फॉर ईच थ्रेड क्लास एरिया इज क्रिएटेड. लिखिएगा ये बात. फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रेड. फर्स्ट, class area, to store the information of classes, to store the information and instructions, to store the information and instructions of classes loaded by the thread. Second,
stack to store local variables of methods invoked from the thread, to store local variables of methods invoked from a thread. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, each time, बंद कर दो प्रॉपरली, each time the run method is to be executed, each time a run method is to be executed as a thread, JRE creates a class area and a stack. JRE creates class area and a stack for it. देखिएगा यहाँ पर हमें फर्क समझना है मेथड में और एक थ्रेड में क्या फर्क होता है। मेरे पास अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम लिखते हैं जावा ए, जावा बी, जावा एक्स, जावा वाई, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? We are asking the JRE that this particular class need to be executed. In order to execute a class, certain resources are required. It is the responsibility of the JRE to facilitate those resources. जैसे अगर मैं यहाँ कोई ट्रेनर हायर करूँ और उससे कहूँ कि आपको पढ़ाना है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? I need to provide environment to the trainer. अब मैं उससे सड़क पे खड़ा होकर ये नहीं कहूँगा खड़े हो जाओ और पढ़ाओ। कल मैंने आपको बताया था, a trainer need certain resources in order to provide the training. There must be some classroom, whiteboard, projector system, chairs, tanks, AC, students. ये सारी चीजें होंगी तभी तो ट्रेनर पढ़ाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं ट्रेनर हायर कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्लासरूम बनाऊँ, उसमें ये सारे रिसोर्सेज लगाऊँ, स्टूडेंट अवेलेबल कराऊँ, तब उसे भेजूँ जाओ पढ़ाओ, तब वो पढ़ा सकता है। सेम वे में हमने सिर्फ JRE से कह दिया दिस इज द क्लास एग्जीक्यूटेड। JRE क्या करेगा? JRE सबसे पहले रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा आपको फ्लो समझाया गया है, होता क्या गया है. We ask the GRE to execute class A. GRE knows that in order to execute any application, some resources are required. A thread of execution is required. So first of all, GRE would create a thread object in the heap. This thread object shall be used by the GRE to manage the main thread. मेन एक नाम है जो GRE एक थ्रेड को देता है जिससे वो इनिशियली स्टार्ट करता है. इसका मेन मेथड से कोई लेना देना नहीं है. मेन मेथड हो ना हो ये थ्रेड जरूर बनेगा. ये थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया. अब इस थ्रेड ऑब्जेक्ट के बाद यूजिंग दिस थ्रेड ऑब्जेक्ट GRE would allocate stack and class area for the execution of this thread. ये मान के चलेंगे आप टीचर है, ट्रेनर है. ये मान के चलेंगे क्लासरूम और लैब है जो इसे काम करने के लिए चाहिए. ठीक है. स्टैक और क्लास एरिया एलोकेट करा है. उसके बाद मेन मेथड पहले से, मेन थ्रेड पहले से डिफाइंड है, GRE को पता है. यानी कि एक रन मेथड है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं जो आपकी क्लासेस को लोड कराती है. वो इंस्ट्रक्शन उठा के यहाँ कॉपी करी जाएंगी. दिस इज मेन थ्रेड, इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेन थ्रेड. यानी कि ये एक रन मेथड है. ये उस रन मेथड की स्टेट है. ये एम्प्लॉय है, ये उसका रिकॉर्ड है. लेकिन ये एम्प्लॉय एक तरह से मान के चलिए कंपनी का डायरेक्टर है जिसने इनिशियल सेटअप बनाया. अब बाकी सारे एम्प्लॉय को कौन लेके आएगा? डायरेक्टर. और जब किसी एम्प्लॉय को लेके आएगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा पहले. तो ये डायरेक्टर है, ये मान के चलेंगे मेन थ्रेड है. उसके बाद अब मेन थ्रेड को कहा जाएगा कि अब आप इस क्लास को लोड कराओ. मेन थ्रेड ढूंढेगा a.class फाइल, इसके इंस्ट्रक्शंस और इसके डेटा मेंबर उठा के इस क्लास एरिया में रख लिए जाएंगे. अगर कोई स्टैटिक डेटा मेंबर होंगे तो वो यहाँ रखे जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस यहाँ रखी जाएंगी. क्लास एरिया इज क्रिएटेड फॉर द थ्रेड, नॉट फॉर द क्लास. ये ध्यान में रखना है. अगर हमारे पास हो गई तो ये सही, आराम कर लो, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. तो अभी हो गया तो फिर चले जाना बीच में, इंतजार मत करना क्लास खत्म होने का. हाँ जी, आगे बात करते हैं. यहाँ पर क्लास एरिया एंड स्टैक क्रिएट हो रहे हैं किसके लिए? फॉर द थ्रेड, नॉट फॉर द मेथड. क्लास लोड हो गई,
हम इसे एक्सक्लूड कराना चाहते थे. एंट्री पॉइंट टू आवर एप्लीकेशन इज मेन मैथड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. तो JRE क्या ढूंढेगा? JRE would look for main method. Instructions of main method are loaded here. We would have some local variables inside the main method. Those local variables has been stored inside this stack. स्टैक किसके लिए बना है? मेथड के कि थ्रेड के? स्टैक बना है थ्रेड के लिए. अगर मैं मेन से किसी एक मेथड x को कॉल करता हूं, क्या होगा? उसके लोकल वेरिएबल्स कहां आएंगे? इसी स्टैक में आ जाएंगे. अगर मैं कोई नया थ्रेड चलाता हूं तो क्या होगा? एक नया स्टैक बनेगा, एक नया क्लास एरिया बनेगा. मेन थ्रेड ने मान लीजिए एक क्लास लोड की और मैंने एक दूसरा थ्रेड बनाया T1, उसने एक क्लास B लोड की. क्लास B की इंस्ट्रक्शन दूसरे थ्रेड के क्लास एरिया में होंगी. वहां से जो मेथड कॉल होंगे वो उसके स्टैक में होंगे. मेथड और थ्रेड में अगर आपको फर्क समझना है तो ऐसे फर्क समझिए. मैंने एक क्लासरूम बनाया, उस क्लासरूम को मैंने 4 अलग अलग ट्रेनर को एलोकेट कर दिया. एक बैच बताया, पहले एक ट्रेनर गया, उसने क्लास ली, फिर वो ट्रेनर थोड़ी देर के लिए बैठ गया. मान लीजिए 2 चीज़ें पढ़ानी थी, मुझे थ्रेड पढ़ानी थी और मुझे कोई प्रोग्राम भी दिखाना था. मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, प्रोग्राम बनाना नहीं आता. मैं साइड में बैठ गया, थोड़ी पढ़ा के दूसरा आदमी प्रोग्राम बनाने लगा. उसने आपको प्रोग्राम दिखाया. जब उसने प्रोग्राम बना दिया, मैं खड़ा हो गया, मैंने फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया. अब एक टाइम पे कितने लोग काम कर रहे हैं? एक बार में एक काम कर रहा है. जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो कुछ नहीं कर रहा, और जब वो काम कर रहा है तो मैं सामने बैठा हूँ. दोनों हैं एक ही क्लासरूम में. यहाँ पर क्लासरूम रिप्रेजेंट करेगा थ्रेड को, और उस थ्रेड के अंदर जो 2 पर्सन है वो रिप्रेजेंट करेंगे मेथड को. फर्क आ रहा है समझ में? लेकिन अगर मैं एक और क्लासरूम में एक और कोर्स चलाना चाहूँ कॉन्करेंटली, तो अब मुझे यहाँ एक और ट्रेनर बैठाना पड़ेगा या एक नई क्लासरूम बनानी पड़ेगी? न्यू क्लासरूम इज रिक्वायर्ड. अगर मैं चाहता हूँ 2 बैच एक साथ चले, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही कर सकता हूँ. 2 ट्रेनर एक साथ लगा सकता हूँ. एक क्लास में अगर एक साथ 2 ट्रेनर या 3 ट्रेनर हैं, दे आर मेथड्स इनसाइड ए थ्रेड. If we have different classrooms, we have different threads. यहाँ पर सबसे पहला मेथड आपको बताया गया था current thread. मान लीजिए we are executing main method. Main method wants to inside the main method we want to find out which thread invoked this method. हम पता लगा सकते हैं. हम कोई मेथड ये जानना चाहता है कि वो किस क्लास एरिया में है, किस स्टैक में है. स्टैक और क्लास एरिया किसके होंगे? थ्रेड के. मेथड जान सकता है ये बात. If a class wants to know it is loaded by which thread, it can find out this information using which method? Current thread. हर एक क्लास एरिया, हर एक स्टैक किसी ना किसी थ्रेड से एसोसिएटेड होगा. Without thread, class area or stack cannot be created. So using the current thread method, we can find out which class is loaded by which thread and which method is invoked by which thread. समझ आ रही है बात? इतना डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे की बात करते हैं आपसे.